Hello students, good morning, and I hope that you all will be fine along with your family. So you are well acquainted from me. I don't think that there is a need to introduce me. And what I want to say that the pandemic of COVID-19 is increasing day by day by an alarming rate. So I request you to do not go outside if there is no any important job or work. Be stay at home and be safe. Thank you. Now we are going in this video. We are going to take class 10th subject economics, and we shall deal from the first chapter of this book, that is development. Today we shall learn and try to learn and understand the following points in this video, and I think that this will be complete explanation of this chapter. Point first, we shall understand the meaning of development. What is development? Question बनेगा. सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन नोशन ऑफ डेवलपमेंट, हाउ डू कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड व्हाई. थर्ड, डिफरेंस इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. द फोर्थ पॉइंट, पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट, what parameters are included to categorize or to make difference between growth and development. What are the different parameters? What are the different indexes? What are the different indicators of the development? And the fifth point is measurement of development. In this point, our heading, under this heading, we shall study the methods that are applied to measure the development. How to measure the development? This is the question of this point, which you have to be answered in this explanation. Thus, finally, in the sixth point, we shall discuss the terminology, new terminologies to be used during the explanation of the concept of the development. So I think it is important to note it so that you could easily grasp the lecture easily and could learn the basic implication of this topic in a good manner. And now I am going to erase this, so I request you to once again that these are the 6 points under which the content of this chapter shall be dealt. So we shall take the first point, that is development, the meaning of development. Student be that right since our birth till the very end of life, everyone is in process of making development. Then the question is, what is development? Everyone, we know that everyone have different aspirations, desire, what our life should be, how can improve our life, हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं. तो all these questions are related to the concept of development. Development is a quality oriented concept. एक गुणात्मक धारणा है. हिंदी में डेवलपमेंट या विकास एक जो है गुणात्मक धारणा है, जिसमें न केवल भौतिक विकास को शामिल किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ इसमें सामाजिक राजनैतिक विकास को भी शामिल किया जाता है. तो प्रिसाइजली डिफाइनिंग द टर्म्स डेवलपमेंट, अगर हम विकास को परिभाषित करें
तो आप डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट is a long and progressive change in our life. Development is a long and progressive change in our life. Means progressive and sustained change in our life is called development. हमारे जीवन में दीर्घकालिक और जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील परिवर्तन आते हैं, the changes may be negative, but only positive change in our life are called development. Suppose that in a village there are different types of persons and different groups of people live in different community in our region, and in these groups there is a huge variation in terms of standard of living. आपने देखा होगा हमारे आसपास के गांव में विभिन्न प्रकार के विभिन्न समूहों में लोग रहते हैं जिनका जीवन स्तर विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होता है। कहीं कोई गरीब है, देयर आर सम ग्रुप्स हु आर पुअर, देयर आर सम ग्रुप हु आर रिच, देयर आर मिडिल क्लास फैमिलीज हु लाइज बिटवीन द लोअर एंड द अपर ग्रुप्स। तो ऑल दिस make difference to our lifestyle. The lifestyle of poor is different from the lifestyle of the rich persons or the person belonging to the upper strata of the society. So we have a different notion in terms of development. हर व्यक्ति की, समाज के हर समूह की विकास को लेकर अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग जो है उनकी मान्यताएं होती हैं, अलग अलग उनकी परिभाषाएं होती हैं। तो विकास अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेवलपमेंट, तो प्रोग्रेसिव चेंज या सस्टेन चेंज, कंटिन्यूअस पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइफ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट मे बी आल्सो अंडरस्टूड एज अ डिफरेंस बिटवीन द नेशनल डेवलपमेंट या कंट्री डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं, एंड इंडिविजुअल और ग्रुप डेवलपमेंट। एज देयर आर डिफरेंसेस एट लोकल लेवल्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे स्थानीय स्तर पर आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में किसी का घर कच्चा है तो कोई पक्के मकान में रहता है, किसी के घर हर प्रकार की बुनियादी साधन मौजूद हैं, सबके साथ बुनियादी साधन नहीं है। कोई जो है 4 व्हीलर से चलता है, कोई साइकिल से चल रहा है, बट एवरी पर्सन देयर इज अ कॉमन थिंग्स अमंग अस। हम सब के बीच एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ए पर्सन ऑलवेज डिजायर टू प्रोग्रेस and aspire to reach at the top of development. हर व्यक्ति जो है विकास के क्रम में उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहता है। इस प्रकार की ऑस्पिरेशंस जो है सबके अंदर रहती है। बट डेवलपमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट। लेकिन विकास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप रात भर में प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज ए लॉन्ग and continuous process that is made possible, that bring about a change in our life. देखिए ये डायग्राम को आप देखेंगे, इसमें लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी, इतने लेवल हैं। विकास के ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। इन सीढ़ियों पर हम चढ़ते जाते हैं, निरंतर हमारा प्रयास होता है
इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, जॉब करते हैं, वर्क करते हैं और फिर हम अपनी लाइफ को जो है बेहतर बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंसेस इन द नोशन ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण आप ले लीजिए, दूसरा पॉइंट आप डिस्कस करिए। तो आप मेरे हिसाब से आप डेवलपमेंट की मीनिंग समझ गए होंगे। विकास का अर्थ है जीवन में परिवर्तन। जीवन का जो स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है हमारा, रहन सहन का स्तर, उसका ऊपर उठना ही या उत्तरोत्तर उसमें विकास होना, उत्तरोत्तर उसका हायर स्टैंडर्ड होना ही विकास कहलाता है कि हम विकास कर रहे हैं। तो विकास में हम बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, अभी उसको हम आगे बताएंगे। पहले हम सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंस इन नोशन ऑफ डेवलपमेंट। डिफरेंस इन नोशन ऑफ डेवलपमेंट। What it means that in our society, situations of person belonging to different groups differ from one another. We all live in village and we are well acquainted from different groups of people living around us. We have seen that in rural areas there are रूरल लैंडलेस लेबरर। पहली कैटेगरी आपने देखा होगा, रूरल लैंडलेस पीपल। गांव के जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको आपने देखा होगा, हु आर डिवाइड ऑफ एनी पीस ऑफ लैंड, जिनके पास जमीन या भूखंड का एक भी टुकड़ा नहीं होता, जिनके पास कोई जमीन नहीं होती, उन्हें हम लैंडलेस कहते हैं। और लैंडलेस लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या होगा? विकास का अर्थ होगा उनके लिए इफ देयर आर इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट आर एक्सटेंडेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर उन्हें निरंतर कार्य मिलता रहे, रोजगार उनके लिए क्या है? विकास है। इफ दे फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देन दे से दैट वी आर डेवलपिंग, देयर इज ए डेवलपमेंट। अगर उन्हें निरंतर काम मिल रहा है तो फॉर ए रूरल लेबरर आर पीपल, डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। उनका मतलब है एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी, रोजगार में वृद्धि ही उनके लिए विकास है। नॉट ओनली इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इज डेवलपमेंट बट सिक्योरिटी ऑफ जॉब, वो जो एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिले वो जॉब सिक्योर हो, मतलब उनकी नौकरी जो हो वो दीर्घ काल तक चलती रहे। ये नहीं कि उनको एक दिन काम मिल गया और बाकी दिन वो जो है बेरोजगार है। तो एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद जॉब सिक्योरिटी प्लस अश्योर्ड बेस या इंक्रीज बेड, बड़ी मजदूरी, इंक्रीज वेज, उनके लिए विकास होगा। गांव में किसान है, एक ऐसा किसान जो बहुत बड़ा है, जिसके पास बहुत खेत है, बहुत उसका फार्म हाउस है, वो बहुत बड़ा किसान है। देयर आर बिग पीजेंट्स और बिग फार्मर फॉर हिम। वो अपने लिए, सपोज दैट दी विलेज दैट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न parts of our country like Punjab, Haryana, where agriculture is done on large scale, where the size of holdings are very large, then for those peoples development means increased MSP prices for their crops, increased MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत।
वो चाहते हैं कि उनके फसलों के लिए, उनकी क्रॉप्स के लिए अगर सरकार बड़ी कीमतें अश्योर करती है, उन्हें सुनिश्चित करती है, तो उनके लिए विकास होगा। कोई छोटा किसान है, ठीक है, कोई छोटा किसान है, तो उसके लिए विकास क्या होगा? इफ वी हैव नो irrigation facility, if he has no finance to he do not have any source to mobilize capital for doing agriculture activities or to finance its फार्मिंग एक्टिविटीज़, खेती करने के लिए उसे जो फाइनेंस चाहिए, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है तो उसको साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है। तो ऐसे किसान के लिए विकास का अर्थ होगा एक्सटेंशन ऑफ, अगर सिंचाई सुविधाओं का विकास होता है तो कहेगा कि विकास हुआ। एक्सटेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन facilities and institutional credit, तो उसके लिए विकास होगा कि अगर if there are arrangements for regular supply and in time supply of credit to manage the financial needs of the small landlords,